Cool. So, welcome Snigdha to Anurag Minus Verma podcast, and I'm super happy to discuss with you your new book, Scamlands. And I told you I've been reading your article since many years, and it's an absolute privilege कि finally you are here and we are speaking on this podcast. So, first of all, No, thank you, can thank you I so much. just cut you off to say that I am very glad to be on this podcast, and honestly, I've waited for this day. सुपर सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मतलब जो हमने भी बात की थी इस बारे में कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ दिस बुक विद शाहरुख खान Wow, you make it sound so shady. पर शाहरुख खान का किसी भी स्कैम से दूर दूर तक नाता कोई नहीं है. रिलेशन नहीं है मेरी पहली किताब आई थी ड्रीमर्स 2018 यस में, एंड इन 2019. व्हिच इज आल्सो हाईली रिकमेंडेड फॉर माय व्यूअर दैट यू हैव टू रीड दिस वन Yes, you have to. On 2019 में, the Star TV had got Shah Rukh Khan to host a series of TED Talks. And I was one of them invited on the show. So Shah Rukh Khan के साथ मैंने किया host. मतलब I gave the TED talk. He introduced me and hosted me, which was probably the most, like, the wildest thing that ever happened to me. Changed my life, etc. In ways that would become more apparent in the following days. फिर ड्रीमर्स खत्म हो गई थी, and ड्रीमर्स finishes on with a chapter called The Scammer, and I knew that I wanted to take it forward and write a book about that entire world that I'd discovered. But the problem, proposal तो हो गया, idea भी बहुत अच्छा था, but then when you start going to these places where these scam communities are, you want them to talk to you, क्योंकि victim से बात करना तो बहुत आसान है मेरे लिए, and to theorize about scams and what's going on. But I wanted to talk to the scammers and to have them tell me their story, and also agree that I could use those stories. And that was sometimes hard, sometimes not so hard. But in some of the places, I remember in both in Jharkhand and Assam, I would meet people and ask them to introduce me to the scammers in their communities. और फिर ये लोग उनसे मुझे इंट्रोड्यूस कराते थे, तो कहते थे कि ये आप इनको यूट्यूब पे देख लीजिए, और ये मतलब वो शाहरुख खान वाली मैडम है, शाहरुख खान ने उनसे बात की है. So they would search me on YouTube, and then this would be the first thing that came up. So they would even, like, most people, like, saw the full thing as it was Shah Rukh Khan, and then who wouldn't want to speak to you? So I think in very unexpected way, Shah Rukh Khan इन दैट eased सेंस my. गूगल पे जो फर्स्ट लिंक आपकी आती है किसी के भी नाम के साथ दैट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ डिजिटल विजिटिंग कार्ड दैट डिफाइंस Yes. यू बेसिकली Yes, but more so in India, especially in rural India, YouTube पे सबसे पहले जो आता है. अच्छा Because they would search me on YouTube. नॉट I ऑन was गूगल not on Google. I was already making a transition from being a very straightforward print journalist to like navigating a space where nobody knew what I was like. Nobody knew me for my writing. New York Times हो चाहे Hindustan Times हो, people would search me on YouTube. So that became my currency. जो भी मैंने talks दिए थे या जो भी मैंने टेलीवाइज कोई अपीयरेंस हुआ, और उसमें फर्स्ट फिर टेड टॉक आने लगी थी शाहरुख खान के साथ, एंड दैट How was became your the stepping experience of stone to Scamlands. how was your experience of meeting with Shahrukh? You are a big fan Wild, of yes, huge fan. yeah. I remember that he asked me about my name, and मेरा जो first name Snigdha, last name Poonam, and it's my mother's name. So he asked me what he should call me, and I said Snigdha because I don't want anyone to call me by my mother's name. So then he said, "अच्छा, कि तो माँ का नाम है," and then he looked at the camera and then addressed my mother. And I thought that's, when everyone tells you that he's a really nice guy, you still feel like film star hai, kitna hi sweet or kind or sensitive hoga. But I think that was a moment that, just he can do as many bad films as he wants to. Now I'll never go back to. I think we Yeah. already had that discussion in Yes. private. Yeah, yeah, superb. So, to come to the book, I think the first thing I really wanted to ask is about the KBC scam. अब केबीसी का इंडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मेजर एस्पिरेशनल रोल है, स्पेशली जो सैटेलाइट टीवी जब इंडिया में लॉन्च हुई और उसके बाद में केबीसी जैसा शो आया विच गेव देम अ प्रॉमिस कि
कोई भी करोड़पति बन सकता है, और उसमें एक मजा भी है क्योंकि वो पूछ रहा है कौन बनेगा करोड़पति, तो सबको लगता है मैं बनूंगा। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्विकली जी के पढ़ रहे हैं, तो उनको लग गया कि एक बहुत ही अच्छा मीडियम है जिसके थ्रू हम भी अमीर बन सकते हैं। तो वो एक एस्पिरेशन की तरह इनिशियली शुरू हुआ था, एंड उसके बाद में आते आते उसके अंदर एक स्कैम बन गया, जिसको आपने बहुत डिटेल में बताया। और आपने यू ऑल्सो मेंशन कि राणा प्रताप एक व्यक्ति थे जिसके साथ यू ऑल्सो सेड कि मुझे आप काम दो, एंड देन दैट रिलेशनशिप गोज ऑन एंड ऑफ, एंड यू एक्सप्लेन। तो और ऑब्वियसली फिर इंडिया को जानने के लिए केबीसी वैसे भी बड़ा इम्पोर्टेंट बन गया था जब वो फिल्म रिलीज हुई थी स्लम डॉग मिलियनेयर, तो उसके अंदर भी है। तो इंडिया जैसे नेशन के अंदर आई थिंक वी कैन डिवाइड दिस क्वेश्चन इन टू पार्ट। वन इज what did that whole idea of KBC bought in, and then the second part is then उसके बाद में स्कैम की शुरुआत KBC के अराउंड इतनी ज़बरदस्त क्यों हो गई, जिसमें ना कि इंडियंस लगे हुए हैं बट पाकिस्तानी भी लगे हुए हैं। उनको पता है कि इंडियंस को KBC फॉर्मेट बड़ा पसंद आता है। You're spoiling the end, but it's Okay. fine. uh, I agree with you. I think KBC का जो हमारे सोसाइटी के ऊपर प्रभाव था, the way that the how deeply it has shaped us culturally. When I was trying to research, I couldn't find anything. So I've tried to do as much as I can myself. Going into the history, seeing what was written, how people reacted over the years, and if I can just talk about myself, it was a huge moment for me growing up in a small town. Not yet, it was like still in school, and TV पे पहली बार आई थी, हम सारी फैमिली के साथ देखते थे, and I think it gave me the sense that कि किसी को भी मिल सकते हैं 1 करोड़ रुपए। मेरी माँ का बड़ा ख्वाब था केबीसी में पैसे जीतने का, 1 करोड़ जीतने का, तो हम सब लोग साथ में आंसर देते थे। बट येस, ऑफ कोर्स इट वाज़ हैपनिंग एट द हाउसहोल्ड लेवल। और जब ये स्कैम की शुरुआत हुई, वो बहुत ही, अभी हर एक स्कैम इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि वो हमारे ही कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारे ही जो डिज़ायर्स और वीकनेसेस हैं उसके ऊपर बना हुआ है। बट आई मीन केबीसी टू वाज शोज़ यू दैट उनको पता है कि केबीसी का हमारे लिए क्या मायने हैं। दैट सो मेनी ऑफ अस हु sort of came of age in that milieu understand the aspirational feel कि कोई भी हो, आप कहीं पे भी हो, आपको केबीसी से आप करोड़पति बन सकते हैं, आपकी 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 लाइफ चेंज हो सकती है। एंड दे हैव टेकन दिस आइडिया, द स्कैमर्स, एंड दे गिव यू अ कॉल एंड दे टेल यू कि आपको केबीसी की लॉटरी लगी है। मतलब आपको केबीसी में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, आपको ना जाना है, ना आपको जनरल नॉलेज पढ़ना है, ना आपको फास्टेस्ट फिंगर करना है। आई एम जस्ट समवन हैज़ जस्ट इंक्लूडेड यू इन अ लॉटरी एंड लॉटरी स्कीम, और आपको बिना कुछ किए आपको 25 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से। नरेंद्र मोदी दे रहा है, या मुकेश अंबानी दे रहा है, या फिर दुबई का कोई शेख दे रहा है, या अबू धाबी की किंगडम से आपको मिलने वाला है। डजेंट मैटर, पीपल स्टॉप थिंकिंग वंस दे हैव बीन टोल्ड कि 25 लाख आपको मिलने वाले हैं। उस पर कोई भी स्टोरी बना देते हैं, एंड देन दे आस्क यू टू गिव देम, लाइक ट्रांसफर देम the processing fees and the taxes and things, and this is how it starts. And कितनी successful हुई है ये scam. It's been like I think going on for almost a decade now. और हर जो बंदा इसमें फ़ोन करता है उसका एक ही नाम होता है, राणा प्रताप। This is one of the most fascinating things I found about this underworld of scams and fraud. एक इंसान ने किया, सबसे पहले नाम लिया होगा राणा प्रताप, and now that has become like a code for the entire sort of industry of Rana Pratap, KBC scammers. किसी से भी फोन आएगा और वो बोलेगा आपको कि मेरा नाम राणा प्रताप है। थोड़ा अथॉरिटेटिव नाम लगता है, Authoritative अथॉरिटी वाली फीलिंग आती है, सब लाइक कोई फौजी है। बिल्कुल। And so I just asked one of them कि लॉटरी का तो पता नहीं, बट मुझे थोड़ी जॉब की ज़रूरत थी, बिकॉज आई हैड बीन इन दिस अंडरवर्ल्ड फॉर लिटिल वाइल, एंड आई न्यू कि इनको वर्कर्स की बहुत ज़रूरत होती है। एंड दैट्स व्हाट आई आस्क्ड, आई सेड आई डोंट, लॉटरी की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे काम की ज़रूरत है। सीधे उसका जवाब आता है कि कस्टमर को झांसे में ला सकती हो, कैन यू ट्रैप अ कस्टमर, एंड दैट्स हाउ इट बिगिंस। इसके अंदर बट मेरे पास भी 2-3 बार कॉल आ चुके हैं, सो आई मेड अ वीडियो। मेरी काफ़ी स्कैमर से बातचीत भी हुई, हमारी दोस्ती भी हुई एक स्कैमर से, तो आई मेड काफ़ी सारे उस पर
वीडियो भी मैंने बनाए थे। तो एक मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें ऐसी बड़ी रैंडम वो है कि जो केबीसी का ये पूरा था जिसके अंदर लोग प्रिपेयर कर रहे थे, ये पैरेलली आई थिंक जो यूपीएससी के और जो इतनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बाद हमारा मतलब एक तरह से नॉलेज का रिसोर्स पहले से तैयार था एंड एवरीबडी वाज लुकिंग कि इसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दें। तो उसी स्कैम में जैसे यूपीएससी एक हो गया तो केबीसी एक हो गया, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें आ गई। तो बट एक जो सेकंड सेकंड जो चीज़ थी इसके अंदर वो थी कि एक पॉइंट पे जैसे अर्ली 2000 में उस टाइम पे बहुत सारे कॉल सेंटर्स बहुत ही ज़्यादा निकले थे, हर तरफ कॉल सेंटर थे। और उन्होंने भी एक प्रॉमिस दिया था कि कॉल सेंटर में आप कुछ टाइम तक जाओगे और आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं, जैसे उस टाइम की एक तरह से गिग इकोनॉमी आप बोल सकते हो, जैसे आजकल स्विगी और उस तरह की हो गई। तो वहाँ पे भी एक था और इंडिया को बड़ा शाइनिंग एग्जांपल दे रहे थे कि देखो यूएस भी इंडिया आता है काम करवाने के लिए, हमारे टाइम पे बोलते थे यूरोप भी इंडिया आता है, सबको इंडिया चाहिए, इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है, यहाँ पे कॉल सेंटर हैं, और लोग भी बहुत सारे कॉल सेंटर में उस टाइम पे काम करते थे। बट धीरे धीरे कॉल सेंटर के अंदर भी जो केबीसी में हुआ कि एक एस्पिरेशनल इंडस्ट्री जो तैयार हुई, इंडियंस को लगता था यहाँ पे, उसके अंदर एक लल पीरियड आया दैट ऑल्सो टर्न इनटू स्कैम्स। So if you can talk a little about that as well. I remember being in school in Ranchi और जितने भी हमारे जो स्मार्टेस्ट सीनियर्स होते थे वो दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर जाके कॉल सेंटर्स में तभी काम करते थे। तो मेरा भी बहुत बड़ा एस्पिरेशन होता था कॉल सेंटर में काम करना है। पर उसमें वो थिंक देयर वाज स्टिल सम कंसर्न अबाउट वुमेन एंड नाइट शिफ्ट। सो एनीवे you know my journey towards call centers had to take a very circuitous turn, which I'll explain. 2016-17 की बात है, and as you're rightly saying वो बूम तो बहुत ही पहले ख़त्म हो चुका था। उसके पहले ही 2011-12 तक तो बहुत सारे लोग, ये कंपनियां इंडिया से वापस जा चुकी थी। But I was working as a reporter in Delhi around then to 2016-17, and I used to regularly go on these job sites, जो हमारे सबसे बड़ी job sites हैं, Naukri.com, Monster.com, because I was looking a little bit at the labor market and especially entry level पे कि लोग हर वक्त डेटा आता रहता था कि कितने 1 मिलियन लोग आ रहे हैं लेबर इकोनॉमी में, 12 मिलियन एक साल में आ रहे हैं, इस तरह का, तो कहाँ रहे हैं। If you went on those websites, हमारे सबसे जाने माने एम्प्लॉयमेंट पोर्टल्स, कॉल सेंटर्स की जॉब बिल्कुल भरी पड़ी थी। MNCs, salaries like what, 50,000, 60,000 a month, Promise. and requirements कम से कम ग्रेजुएट भी नहीं है तो कोई बात नहीं, इंग्लिश, नो इंग्लिश, कंप्यूटर्स, नो कंप्यूटर्स, इट्स फाइन। तो फिर ये जॉब्स कौन से MNCs में, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। So I did the, you know, I did the simplest thing and I made a fake CV for someone called Pooja Sharma, 25 years old. एक 2-3 जॉब कर चुकी है, यूपी से आई थी दिल्ली कुछ साल पहले, अभी जॉब नहीं है, कज़न के साथ रह रही है आई थिंक लाजपत नगर में। And I started uploading that CV in response to this job applications, और हर किसी से जवाब आता है क्योंकि मेरा नंबर है उसके ऊपर। जवाब भी क्या, वो सीधे फ़ोन कॉल ही आ जाते थे रिक्रूटर्स के, और कहते कॉल थे सेंटर वालों के। हाँ सारे, HR प्रिया और HR चेतन, और यही लिखा होता उनका नाम क्या है, हाँ, और एक बस मोबाइल नंबर, और ये मुझे फ़ोन करते थे। मैं और मेरे कॉलीग समर दोनों साथ में ही अंडर कवर गए थे। फिर ये लोग कहते थे कि हमारे पास आप इंटरव्यू के लिए आओ। हम इंटरव्यू के लिए भी गए, हमारा इंग्लिश टेस्ट करते थे। फिर हमें ट्रेनिंग सेंटर ले गए, तो उद्योग विहार में, कीर्ति नगर वगैरह में। वहाँ पे भी हम ट्रेनिंग सेंटर गए। पूरे हॉल में लोग भर के आते थे जो कॉल सेंटर में काम करने जा रहे हैं। MNC में 50-60 हज़ार की नौकरी है, पर है कहाँ? तो हम उसी रास्ते में बस आगे चले जा रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर से भी पास हो गए, तो फिर अब आता था कि एम्प्लॉयमेंट लेटर कि आपको नाम दिया गया है और लोकेशन दिया गया है, एंड देन यू हैव टू गो एंड स्टार्ट वर्किंग। एंड सो दैट्स हाउ वी वेंट टू सम ऑफ द finally sort of landed at the places where we had been given work. And at each of these call centers, it appeared that they were very much call centers, except that they were scamming people over the call. एंड मॉडल वही आउटसोर्सिंग का ही था। इंडियन लोग बैठे हैं उसी एज ग्रुप के जैसे पहले होते थे, 20 से 25 साल के, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लोगों को बाहर फ़ोन कर रहे हैं, US में, UK में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, मगर उनको बेच रहे हैं चीज़ें जो उनको
जो कि बिल्कुल इमेजिनरी है, टेक सपोर्ट जो कि बिल्कुल फालतू है, उनको ना तो ज़रूरत है ना तो वो असली है, नहीं तो धमकियाँ दे रहे हैं, आपने टैक्सेस नहीं पे किए यूएस में, आपके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाला है, आपने यूके में फिर वो हिज मैजेस्टी इन कस्टम्स का आपका कुछ आपने कुछ रूल्स तोड़े हुए हैं, whether it's greed or fear or desire or something, they were obviously sort of using some of those triggers, but काम उनका यही था कि बाहर के लोगों को फंसाना है और उनसे उनको स्कैम करके अपनी कंपनी की तरफ। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि मैं गुड़गांव में काम कर रहा था एक कंपनी में। तो मैंने कॉल सेंटर में 5-6 कॉल सेंटर चेंज किए थे 2011 के दौरान, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पास आउट हो गया, थोड़ा थोड़ा बहुत पैसे कमा लेते। तो मेरी इनिशियल सैलरी उस टाइम पे थी, ट्रेनिंग की सैलरी थी अराउंड 16,000 17,000, विच वॉज नॉट बैड बिकॉज कुछ ज़्यादा कुछ मतलब ट्रेनिंग में तो आपको अंताक्षरी खेलनी है और वो सब करना है, तो कुछ करना नहीं था। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट जॉइंड HCL कॉल सेंटर, then joined some other call center, फिर then there was a call center in at DLF गुड़गांव, then Adobe का एक कॉल सेंटर था। तो ऐसे 5-6 कॉल सेंटर आए। तो उसमें से एक पर्टिकुलर जो गुड़गांव में था DLF के पास में, उसको मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था, एंड टर्न्ड आउट दैट दैट वाज अ फ्रॉड कॉल सेंटर, और उस पर काफ़ी केस हो गए यूएस के अंदर, सू कर दिया उसको। सो दैट वाज वेरी वियर्ड, लाइक आई वाज आल्सो, I mean, I had no idea कि इसके अंदर ये चल रहा है. I was just a trainee, but later on I realized It that became a huge story. We will not name that हाँ, company call because it center. is also very Hmm. it loves to sue as well. Oh, okay. Yeah. Oh, then we shouldn't. Yeah. Yeah. But ये Maybe we can give a hint, like. this was one of the biggest tech support call centers servicing the American market. Hmm. This was like where our best outsourcing talent used to work in Oh, really? Gurgaon. Yeah. Okay. बहुत जानी मानी कंपनी थी, और अमेरिका में तो हर दूसरा आदमी इसको जानता था, क्योंकि यहाँ से वहाँ से लोग बात करते थे, अपना टेक सपोर्ट लेते थे। अच्छा, एंड इतनी बड़ी कंपनी थी। हाँ, और उसी मॉडल को इन लोगों ने वेपनाइज कर दिया कि हम्म आई थिंक अराउंड 2011 इज व्हाट आई एम टोल्ड बाय द पीपल हु डिड दिस, कि जो सीनियर सा क्राउड हो गया था वहाँ पे कॉल सेंटर एम्प्लॉयज़ का, इनको अब लग गया कि ये जो भी 20-25 हज़ार की नौकरी है उससे कुछ बहुत बेटर हो सकता है। सो दे स्टार्टेड टू स्टील द डेटा दैट वाज कंपनीज प्रॉपर्टी, जिन लोगों को यूएस में फ़ोन करते थे, यूएस यूके वेस्टर्न वर्ल्ड में, और डेटा चुरा के, और बाकी इसी 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 जो इनका जो स्ट्रक्चर था उसके अराउंड बाकी एसेट्स चुरा के, हार्ड ड्राइव वगैरह में, आई थिंक उस वक्त दे यूज्ड टू दे जस्ट फ्लड द कॉल सेंटर एंड स्टार्टेड देयर ओन स्कैम सेंटर्स अराउंड गुड़गांव। तो इसी में काफ़ी स्प्लिंटर ग्रुप्स हो गए थे, एंड दैट्स हाउ द गुड़गांव's नाउ मैसिव स्कैम कॉल सेंटर इंडस्ट्री sort of took root. अच्छा, इतनी बड़ी कहानी है। मैंने तो उनका बहुत नुकसान कर दिया था। एक बार क्या हुआ था कि उनका क्या बोलते हैं उसको, वो जिससे प्रोजेक्टर जो होता है, तो एनीवेज प्रोजेक्टर लगा हुआ था, तो मेरे को कार्टून बनाने की बहुत आदत थी ब्लैक बोर्ड वगैरह पे। तो वहाँ पे वाइट बोर्ड लगा हुआ था, तो मैंने कार्टून बना दिया एक उससे। एंड तो फिर इतने में मेरा मैनेजर आया, उसने कहा तूने ये क्या किया? मैंने कहा कार्टून है, मिटा देता हूँ। बोलता नहीं, ये वो है, प्रोजेक्टर की स्क्रीन है जिस पे कार्टून मिटता नहीं है, और वो कुछ 30-40 हज़ार रुपये का था। And फिर 2-3 लोग लगे, उसने कहा तेरे को आज निकाल देंगे और फाइन लेंगे, बट ही वॉज अ वेरी नाइस गाय, एंड उसने बहुत मेहनत करके फिर उसको हटवाया। इट वॉज अ वेरी मैसी सिचुएशन। आई थिंक वो बाद में स्कैमर बन गया। Please, I beg you, stay out of the job market. तो आता ही पॉडकास्टर ही ठीक हो। पॉडकास्टिंग इज बेटर देन दैट। तो हाँ, वही दैट वाज माय लिमिटेड एक्सपीरियंस कि मैं गया था, उनका नुकसान हो गया ज़्यादा, तो वो बट बैलेंस आउट हो गया कि वो बाद में स्कैम कर रहे थे दूसरे के साथ में। तो ये बड़ा मतलब, इनफैक्ट मैं कहता हूँ ये जो बुक में मैंने लिखा है कि आजकल का जो कंटेंट क्रिएशन है, दैट्स न्यू BPO, बिकॉज इसके अंदर भी एंट्री एग्जिट का कोई सिस्टम नहीं है। कभी भी आप एंटर कर सकते हो, एग्जिट भी कर सकते हो। स्किल कुछ चाहिए नहीं। स्केल कुछ चाहिए नहीं, हो सकता है आप पैसे कमा लो, हो सकता है आप नहीं कमाओ। लेकिन इसमें स्कैम्स की अगर लार्जर पॉइंट की बात करें, तो लोग बोलते हैं कि जैसे स्कैम्स के लिए आपको गांव वाले लोग बन जाएंगे, या फिर आप गांव देहात में कोई वो बन जाएगा, कोई बूढ़े लोग बन जाएंगे जिन्हें इंटरनेट नहीं आता।
तो स्कैम की भी ऑडियंस किस तरह की, या फिर कोई भी बन सकता है स्कैम के पीछे, कोई भी फंस सकता है? कोई भी बहुत ज़्यादातर तो मुझे लोग मिल रहे हैं जो कि यंग एज के ही हैं, जिनके साथ हर तरह का स्कैम हुआ है। ऑनलाइन शॉपिंग, आप कर लो डिजिटल अरेस्ट, ये जो कुरियर, DHL, फेडेक्स वाले जो स्कैम्स हो रहे हैं, रोमांस स्कैम्स के तो एक यंग ऑडियंस है ही है। सो देयर इज़ अ वेरी डेफिनेट आइडिया इन द वर्ल्ड ऑफ स्कैमस्टर्स कि बूढ़े लोग तो um, एक बहुत ही डिस्टिंक्ट टारगेट हैं, क्योंकि अवेयरनेस कम होती है, अकेले रहते हैं, टेक्नोलॉजी की नॉलेज कम होती है। बट थिंग्स आर नाउ चेंजिंग सो फास्ट दैट each one of us at any age is using a series of digital products, और कहीं ना कहीं तो तुम्हारी अवेयरनेस स्लिप होगी ही, और जहाँ पे भी तुम्हारी वल्नरेबिलिटी है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर जहाँ तक कि कैशबैक वाले जो स्कैम आते हैं, ज़्यादातर बूढ़े लोग कैशबैक चाहिए ही नहीं। कैशबैक चाहिए किसको? ज़्यादातर यंग लोगों यंग को लोगों चाहिए, को कॉलेज चाहिए स्टूडेंट्स को कैशबैक, हाँ चाहिए। हाँ। तो वो कैशबैक के लिए अगर आपको मैसेज आए कि आपको 3,999 का कैशबैक मिलने वाला है, एज यू नो वन ऑफ माई कैरेक्टर सेज, तो कैशबैक वाला स्कैम उसका बहुत चला है, जामताड़ा से वो करता है फ़ोन कॉल्स। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग दैट मोस्टली सॉर्ट ऑफ टारगेट्स द ओल्ड। और ओल्डर लोगों का कुछ और चलेगा। ओल्डर लोगों का आपको चलेगा उल्टा वाला, कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, आपने केवाईसी नहीं कराया, क्योंकि वो उनको इतना अवेयरनेस नहीं है कि डिजिटली जाके कैसे देखना है अपने ऐप में कि केवाईसी मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड ATM कार्ड्स यूज्ड टू बी सो इम्पोर्टेंट फॉर देम, because still so many of them do not use online banking or mobile banking. So the scammers have a very sharp sense of who is the target base for each of their scams, and they would just break it down to me कि उन्होंने ये भी बताया, जैसे कि for someone like me at that time when I met them, I lived as in Delhi as a journalist. So Jeetu, one of my sort of main characters या इन in the दैट, story, he says या आप जमतारा वाले में। हाँ, दिल्ली में बैठे हो आप, आपकी माँ बोलेगी रांची से कि मुझे पैसा ट्रांसफ़र कर दो, जो कि बोलती है। अरसा अब हर हर महीने या हर 2 महीने बात होती है मम्मी से, और फिर पैसे भी भेजती हूँ उनको। एंड मोस्टली नाउ आई डू इट ऑन मोबाइल बैंकिंग। एंड सर, आपके लिए जो कन्वीनियंस है, वो मेरे लिए एक तरीका बन जाता है आपको स्कैम करने का। सो ही काइंड ऑफ एक्सप्लेन्स इट वेरी सिंपली कि जो भी मेरी नीड है, जो भी चीज़ मुझे कन्वीनियंस दे रही है, इवन समथिंग लाइक say these तीन पत्ती apps and all, like so many things that we have on our phones just to pass time, वो भी शायद वो कुछ बूढ़े लोगों से लिमिटेड नहीं है, मोस्टली यंग लोग ही करते हैं। So even that, it doesn't have to be convenience. It can even be a time pass thing. Whatever makes our lives more interesting, easier, more convenient is a weapon in their hands. इनफैक्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दैट ये स्क्रैच कार्ड, ये जो कूपन कैशबैक वाला है, तो ये बड़ा फैसिनेशन है लोगों को। इस मुझे और वरुण ग्रोवर को एक बार यूट्यूब ने बुलाया था कि इनकी जो यूट्यूब के जितने भी टॉप जो वर्ल्ड ओवर जो इनके मेन लोग हैं गूगल के और यूट्यूब के, तो वो सारे इकट्ठा होंगे एंड वी हैव टू गिव देम सम काइंड ऑफ अ लेक्चर था I हमारा। also did one of those. हाँ, तो वो किया था, तो वरुण उसमें वरुण उनसे पूछता है कि मेरी एक कंप्लेन है गूगल से। बोला क्या? बोलते हैं कि ये जीपे के अंदर अभी मैं स्क्रैच करता हूँ तो कुछ आता नहीं, पहले मुझे पहले मुझे 5-10 रुपए मिलते थे और काफ़ी इकट्ठे होते थे। तो उनको समझ नहीं आया, वो कहते उन्होंने वी आर ट्राइंग। बोलते उन्होंने व्हाट आर यू ट्राइंग, उसको स्क्रैच करो तो, और वो कहता है यहाँ चले जाओ शॉपिंग करने तो मतलब वो और काम करवा रहा है। तो ये भी फैसिनेशन है। तो एक तरह से स्कैम भी, तो आई थिंक वो स्कैम के लिए आई थिंक इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हैव सम काइंड ऑफ ग्रीड इन अदर पर्सन, जो कि सभी में होती है। तो they are exploiting that aspect in general. So scam in that way is a monetization of fault lines of human behavior in that sense. So जब तक सामने वाले में कुछ हो ही नहीं, दोनों इंसान अपना फ़ायदा देख रहे हैं, एक जीत जाता है, स्कैमर जीत जाता है उसके अंदर जो अपना ज़्यादा फ़ायदा उसमें देखता है। दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ लुकिंग एट इट। बट like you're talking about Jeetu and the portrait of Jeetu, who comes from the Dalit community, if I'm not wrong. तो स्कैम की जो बात आती है उसके अंदर सबसे पहला नाम ऑब्वियसली जमतारा का आता है बिकॉज ऑफ द नेटफ्लिक्स सीरीज एंड ऑल। बट यू हैव पर्सनली विजिटेड दैट टाउन एंड यू सॉ कि स्कैमर्स के भी बंगलों हैं, और वो एक तरह का सोशल डायनामिक्स उस रीजन का चेंज कर रहा है।
ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू टेल एवरीथिंग बिकॉज लोगों को बुक में पढ़ना चाहिए वो डिटेल में, बट इफ़ यू कैन गिव अ स्लाइट पिक्चर कि जमतारा टाउन में जैसे किसी यहाँ पे किसी को बैठ के उसको लगता है कि हर पेड़ के नीचे एक स्कैमर बैठ के कुछ लगा हुआ है उसमें स्कैम में, बट you obviously explained it in a very detailed way कि वहाँ चल क्या रहा है, so maybe you can give a little bit of glimpse कि what क्या होता है जमतारा टाउन के अंदर. बात बिल्कुल सही है। जब हम यहाँ से सोचते हैं कि वहाँ पे क्या होता होगा, तो लगता है कि हर एक लड़का बैठा हुआ है पेड़ के नीचे फ़ोन कर रहा है। पर वहाँ पे जाके मुझे दिखा कि जो एक गाँव में के अंदर जो मेन जो स्कैमर्स की जो का जो नेटवर्क है, जो लोग फ़ोन करते हैं, जो आपको टेक्स्ट करते हैं, जो द पीपल हू राइट दीज़ स्क्रिप्ट्स, हू कम अप विद दीज़ ways to hack into your accounts, the people who make these fake Google entries, वो सारे 20-25-30 ही हैं. पर उसके अलावा भी पर hundreds of people are involved in ways that I did not know, not having not before visiting these places. So एक तो आपका जो स्कैमर्स का नेटवर्क हो गया, जो लोग जो मेन जिनको साइबर चोर कहते हैं वहाँ पे, तो साइबर चोर हैं सबसे पहले इंटरनल उसमें यूनिट में. उसके बाद देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सेट ऑफ पीपल हु मेक श्योर दैट व्हेन दे टेक मनी फ्रॉम आवर अकाउंट्स दैट इट डज नॉट गो इनटू देयर अकाउंट्स. तो वो इनके लिए अकाउंट्स खोलते हैं. So they have to start these customer service points जहाँ पे कि बैंक अकाउंट का पूरा काम चलता है गाँव में. So now do you again, like, in a village you'll have dozens of people who only do this. फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है उस इकोनॉमी में डिलीवरी एजेंट्स की, क्योंकि कभी कभी तो बैंक अकाउंट हमारे बैंक अकाउंट के अंदर हैं वो, पर अपने किसी अकाउंट में उनको ट्रांसफ़र करना ही नहीं है. Instead they'll go on Amazon, पहले फ्लिपकार्ट में करते थे, they'll make a shopping account using those details of our CVV, our bank account. और वहाँ पे वो पूरी तरह से शॉपिंग करते हैं Amazon में. They'll buy remote control curtains, these home entertainment From systems. that stolen information of cards. या Hmm. और हमारा एक कार्ड यूज़ करके और हमारे से ये OTP लेके, क्योंकि हम तो OTP तो हम एज दे दे कीप देते सेइंग हैं. हमने ही उनको दी है हम्म, OTP. हम्म, इट्स अ सोशल इंजीनियरिंग. फिर वो शॉपिंग करके दे विल देन पुट एन इमेजिनरी एड्रेस हम्म. अपने ही गांव के अराउंड. अब जो डिलीवरी एजेंट है गांव में, उसको पता है कि अभी कोई अजीबोगरीब एड्रेस आ गई तो किसकी होगी, कहाँ पे देना है. सो देन ही विल मेक एन अपॉइंटमेंट विद समवन लाइक जीतू कि आप मुझे पेड़ के नीचे मिलो या तालाब के पास मिलो, मैं आपको ये गिफ्ट्स आके जितने पैकेट होते हैं ये देने हैं. सलवार सूट हो गया वाइफ के लिए. बट अगेन नाउ जीतू विल नॉट टेक दैट पैकेट होम. कहाँ जाएगी वे पैकेट फिर? सो ही विल टेक सम ऑफ इट होम, क्योंकि अपने सारा सामान अगर अपने वो घर ले गया बिल्कुल उसी वक्त, तो सबकी नज़र लग जाएगी. कोई ना कोई जाके पुलिस को बता देगा, फिर पुलिस आ जाएगी, रेड कर लेगी. तो अब और वैसे भी इतना महंगा महंगा सामान, अगर मान लो कि कोई ओबीसी कम्युनिटी का है या कोई दलित कम्युनिटी का है, नहीं ले जाना चाहते अपने घर पे. सो ये जो सामान है वो किसी न किसी इन लोगों की ब्राह्मण ठाकुर, ज़्यादातर ठाकुर इस एरिया में इनके साथ सेटिंग होती थी. तो अब ठाकुर के घर पे जाके या ब्राह्मण के घर पे जाके उन्होंने ज़्यादातर सामान रख दिया है अपना, सिल्क का सलवार सूट, शिफॉन, ज्वेलरी एंड ऑल दैट. क्योंकि वहाँ पे तो पुलिस आएगी नहीं. और जैसे कि जीतू कहता है, आप ब्राह्मण की लड़की को जितना सिल्क का सलवार सूट पहन के घूमना है वो घूम सकती है, उस पर कोई देखेगा नहीं. कि मैं 20,000 का भी मैं फ़ोन लेके चलूँ तो पुलिस पूछेगी कि आपके पास 20,000 का फ़ोन कैसे आ गया. तो ये जो महंगे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं वो अपने अपर कास्ट फ्रेंड्स को वो दे देते हैं थोड़े टाइम के लिए. फिर अपर कास्ट फ्रेंड्स उनसे कमीशन लेते हैं, तो इसमें से कुछ सामान वो रख ही लेते हैं हमेशा के लिए. अब इसके ऊपर भी होता है कि फिर इतना सब कुछ करके भी रेड तो होती ही होती है. पुलिस ले भी जाती है लोगों को 1 रात के लिए, 2 रात के लिए पकड़ के, या जो भी आगे उनका लीगल सिस्टम है. तो फिर मुखिया का रोल होता है इसमें कि उनको बेल करनी है. और हर लड़के को बेल करने के लिए मुखिया उनसे, उनके परिवार से 2 लाख लेता है. तो उसकी भी अच्छी कमाई है, क्योंकि पुलिस का भी बिज़नेस इसी से चलता है कि महीने में 1 बार 2 बार तो रेड करनी है इनको. और एक रेड होती है तो 20 मतलब 12 से 13 घर एक साथ ही चले जाते हैं ये लोग, जहाँ-जहाँ इनको लोकेशन मिल रहा है. So Mukhia's also has his business income sorted. But it doesn't stop there. Even the MLA in some of these places now depend on the money that the cyber chores earn from scamming us to fund their election campaigns. तो उनका भी दरवाज़ा बिल्कुल खुला है इन लोगों के लिए, साइबर चोर्स के लिए. तो वो पैसे देते हैं उनको. तो अगर
अरेस्ट हो भी गए, मान लो पुलिस ने ब्राइब लेने से भी मना कर दिया, मुखिया को बेल भी मना कर दिया, तो एमएलए जाके वहाँ पे धरना देगा कि हमारे लड़कों को छोड़ो, वरना ह्यूमन राइट्स में कंप्लेन मुझे करेंगे. लगा पुलिस कभी करेगी नहीं ब्राइब लेने से मना. इट्स रियली गुड पॉइंट. I पर never पुलिस met. नहीं करती है. हाँ होता क्या है कि जामताड़ा की पुलिस कर लेगी, पर दिल्ली की पुलिस जा रही है वहाँ, हाँ, कह रही है उसके कि लिए. हमारा द्वारका में विक्टिम है और हमें ये हाँ पिन मिली हाँ, लोकेशन की. और स्पेशली वो विक्टिम को इन्फ्लुएंशियल हो. For इन्फ्लुएंशियल हो. example, you said that कि मंडल नाम से there was हाँ. one guy who even scammed Bollywood actress and अमिताभ IAS. बच्चन एंड एलिजेडली अमिताभ बच्चन. अच्छा, allegedly अमिताभ बच्चन को यस. कर लिया जो. Okay. KBC and then Amitabh यस. Bachchan got scammed. यस. Okay. सो उस केस में उनको थोड़ा तो दिखाना पड़ता है. Hmm. तो व्हेन समवन फ्रॉम हैदराबाद इज कमिंग और पुलिस फ्रॉम तेलंगाना इज कमिंग, देन द जामताड़ा पुलिस हैज टू शो दैट वी विल नॉट Active. टेक ब्राइब्स. Hmm. So that so then everyone has a role to play. So economy, I call it the crooks economy. हाँ, बहुत ही इंटेंस है. उस कास्ट का अर्थमेटिक भी इकोनॉमी में हाँ. इंक्लूडेड है. एंड सो द क्रुक्स इकोनॉमी में इन लोगों की जो भूमिका है वो लिमिटेड ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है बट लिमिटेड है. एंड सो व्हाट हैपेंस देन ऑन द डार्कर साइड इज दैट while this is a very entertaining thing to observe, that when they want to quit, then it's not just their decision to take. या People will not let them quit, क्योंकि बाकी जो भी विलेज के लेवल पे जो उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो इससे सो बिल्कुल इट्स मोर लाइक द इंटरट्वाइंड हो पूरा गई. अंडरवर्ल्ड की तरह ही हो गया एक तरह से. बिल्कुल. एंड विच यू एक्सपेंड इन द बुक फर्दर कि जैसे जामतारा तो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ बन गई आजकल, मतलब स्कैम मेजर इकोनॉमी में. बट मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये चल रहे हैं स्कैम. एंड देन यू एक्सप्लेन कि किस तरह से वहाँ पे लोग कभी जाते हैं, फिर कईयों के एस्पिरेशन भी बन गए एक पॉइंट के बाद में. एंड इनको किस तरह से मैनी चाइनीज़ माफिया आर कंट्रोलिंग इट और इंडियन से स्कैम करा रहे हैं. इनफैक्ट आई थिंक कुछ टाइम पहले एक लाओस के अंदर आई थिंक काफ़ी उनको पकड़ा था उन्होंने, इंडियंस को छुड़वाया था इंडियन एम्बेसी ने. वो स्कैमस्टर्स जो उनको स्कैम करवा रहे थे, पासपोर्ट उनका ले लिया था, वो सब किया था, इंडियन एम्बेसी ने छुड़वाया था. तो अभी ये ग्लोबल स्कैम नेटवर्क जो है जिसके अंदर चाइनीज़ एक तरह से काफ़ी लीड कर रहे हैं, तो टॉप पे, और नीचे तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं साउथ हमारे कॉन्टिनेंट की. तो व्हाट इज़ दिस पर्टिकुलर सर्किट? स्टोरी बहुत सिंपल है. स्टोरी वो जो जामताड़ा से लेके कंबोडिया से लेके आई थिंक किताब ख़त्म होती है यूनाइटेड स्टेट्स बॉस्टन में, वो एक ही स्टोरी है. अब वो हमारी लेबर फोर्स की है. उसमें अगर आप बोलो कि देयर आर नो नंबर्स, आई कैन टेल यू विदाउट एग्जैजरेटिंग कि कम से कम 1 मिलियन लोग तो होंगे ही हमारी इकोनॉमी में, हमारे लेबर मार्केट में, जो शायद फुल टाइम, शायद पार्ट टाइम, शायद स्विचिंग बैक एंड फोर्थ, कभी कंस्ट्रक्शन कर लिया, कभी गिग इकोनॉमी में चले गए, कभी स्कैम कर लिया. इतने लोग हैं इसमें. जब इतने लोग हैं, दैट itself makes us the biggest labor pool for the scamming economy, the scam underworld, and anyone can then hire them for a particular job. So it works. I call it an invisible empire. And it is a economy with systems and rules and incentives. तो वो आज के दौर पे अगर कोई है इंडियन, mostly male, I would say, mostly young, who is willing to cross over into the world of scams, तो ज़रूरी नहीं है कि उसे दिल्ली में सेंटर में, कॉल सेंटर में काम मिले, या जामताड़ा के लोग उसको हायर करें, या फिर आसाम के लोग उसको हायर करें. उसको तो कोई चाइना से बैठे बैठे यहाँ पे हायर कर सकता है. उसको कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके साउथ ईस्ट एशिया ले जा सकता है. कोई उसको फेक जॉब ऑफर लेके दुबई में कॉल सेंटर में बुला सकता है. एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग. सो दिस इज़ वेयर द स्टोरी लीड्स इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक, जस्ट टू से दैट even following this story for 6 or 7 years, I could see that the system, larger system, this empire was going more anonymous, more organized, and the people who are controlling then our people, our young men and women, are more dangerous, are more connected. So, I'm talking about systems in Southeast Asia because I went to Cambodia to really find out कि होता क्या है वहाँ पे. इतने सारे लोगों को ट्रैफिक किया जाता है हमारे देश से और बाकी भी देशों से. इट्स लाइक अ फुल ऑन UN स्टाइल सिस्टम, जहाँ पे कि किसी भी कंट्री, युगांडा और अजरबैजान, कहीं से भी जॉब नहीं मिल रही है, उनको जॉब ऑफर आ जाता है साउथ ईस्ट एशिया के लिए. And the moment that you show up there with your job letter,
it's then you're stepping into a highly criminalized system जहाँ पे कि आपको airport से ही फिर लोग they'll show up in black outfits and they'll put you in these totally hooded cars, and then you won't know. Then you can't even ask the driver where you're going. Then there all these sort of very entertaining things with which the book begins start to get darker, because then these people don't know where they are going. उनको बोट में बिठा के दूसरे कंट्री में फिर आपको स्मगल किया जा रहा है. आप थाईलैंड से म्यांमार जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि नदी कहाँ ख़त्म होती है. And then they put them in these very sort of dreaded structures called compounds. Barbed wire होते हैं उनके पूरे गुंडे. They've like a very sort of vast hierarchy of security, and they take your passports and they put you in these hostel like living situations. Bunk bed hogi aapki, and on a bunk bed you can Indian could be sharing a bunk with someone from Uganda or Sri Lanka, or sometimes there are also scam centers जहाँ पे कि इतने Indians आ गए हैं कि यूपी के लोग फिर एक ही हॉस्टल में रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं. बांग्लादेशी एक रूम में रहते हैं. Maharashtrians live amongst each other, and but the rules are the same. Once you've landed there, you can't leave. You can't leave because now you're a slave, because the scam compound paid a recruiter money to buy you. So until you can pay back that money, and really vast sums of money, 8-10 lakh rupee ke terms mein, you can't leave. So then how do you make that money? You will have to start going on the scam floor. वहाँ पे आपको 5-6 फ़ोन दिए जाएंगे और पूरे दिन की स्क्रिप्ट दी जाएगी, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, with even emojis, with even points where you're supposed to take a break from the person that you are trying to lure into romance. And then and once you start working, because you have to earn the money to give back your owner, so that you can leave, फिर लोगों को ये भी एहसास होता है कि पैसे तो बहुत अच्छे बन रहे हैं. So for some of them, not all of them, then it becomes creates a dilemma कि बाहर जाएं या फिर रह ही जाएं, थोड़ा बना लें. तो बेसिकली डेस्परेशन जो है जॉब की, और जॉब मार्केट जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो लोग अब कोई भी तरीका एक तरह से ढूंढ रहे हैं. आई थिंक आज से 10-15 साल पहले भी देयर वाज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कबूतरबाजी, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को भेजा जाता था, फिर पासपोर्ट रख लेते थे, तो वो बहुत होता था सिमिलर. इनफैक्ट मेरे जो एरिया है वहाँ पे माइग्रेशन बहुत होता है गल्फ़ कंट्री में, तो वहाँ पे ऐसी स्टोरी बहुत आती थी कि गल्फ़ कंट्री में बुला लिया कहीं पे, आबू धाबी, शारजा वगैरह में, और शेख ने पासपोर्ट दे दिया, दे नहीं रहा, और वो बकरी चराने के लिए या फिर कोई ना कोई उनको काम पे, स्कैम तो नहीं थे बट ये सब थे, इस ये तरह करते थे. हाँ, इसमें बस इतना एक डार्कर एस्पेक्ट इसका ये हो गया है कि इन लोगों के साथ तो जो हो रहा है बहुत ही बुरा टॉर्चर, बीटिंग्स, स्टार्वेशन, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. पर जिन लोगों को वो स्कैम कर रहे हैं दुनिया भर में, उनके साथ भी बहुत बुरा हो रहा है. पैसे उनके पूरे जा रहे हैं, उनका they're losing their trust in the world. And like if you're talking about countries like America, because I went the book ends in the United States, Boston, जहाँ I met some of the victims. और वहाँ उनकी सोसाइटी में if you've lost your house, as one of the women were telling me, you can't even go and live with your children. So you're practically homeless. कोई relatives का system, कोई सरकार की तरफ से social security कुछ नहीं है. And so then there was this whole trail of devastation from India to where they were from, to Southeast Asia, जहाँ पे पूरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और टॉर्चर का चल रहा है तमाशा. और आप if you go to the other end of the line, as I call it, and meet the victims, you will not be able to decide कि किसके साथ ज़्यादा बुरा हो रहा है. सो बेसिकली इंडिया में कोई गांव में पेड़ के नीचे बैठा बंदा बॉस्टन में एक पूरी फैमिली बर्बाद कर सकता है. इतनी पावर है इस डिजिटल वर्ल्ड की एक तरह से. डिजिटल वर्ल्ड की पावर है. और ऑल्सो फॉर बेटर और वर्स, आई वुड से the reason that India has become the front line of global fraud is that we do have hundreds and thousands of people, but also they are technically fluent. They have an amazing amount of enterprise. I think, I say in the book that scamming is now one of the most polished skills that many of our people have, and it's a skill that will impress you whether or not you want to judge it. And so it's just a judgment on our society that for
for that, the amount of enterprise and talent and technical fluency that we have, we are not able to create opportunities for them to employ it in ways that don't cause so much pain to the others. Even that romance scam which you talk about, उसका एक particular नाम भी है PBS, pig butchering scam, right? हाँ, तो जिसके थ्रू एक बंदा है वो आपको रोमांटिक मिस कॉल पे या फिर रॉन्ग कॉल पे इस तरह से करके फिर रोमांस स्टार्ट होता है, देन क्रिप्टो करेंसी बेच के और देन वो सारे पैसे करता है. तो ये रोमांस वाले स्कैम इंडियंस इतना अच्छा कर रहे हैं बिकॉज लोग तो कहते हैं इंडियंस को रोमांस करना ही नहीं आता. तो हाउ दे गॉट सो गुड एट इट कि वो दुनिया भर में लोग को फंसा रहे हैं रोमांस के थ्रू. बहुत मुश्किल है किन किन लोगों के लिए. आई मेरी बुक में जो एक बंदा है, आई थिंक ही वाज फ्रॉम टुमकुर इन कर्नाटका. वो चला जाता है जॉब लेटर पकड़ के अपने वहाँ कंबोडिया सिनुकविल में, और देन दे हैव एवरीथिंग रेडी फॉर देम. उनको उसको बताया गया है कि दिस इज़ एन इंस्टाग्राम अकाउंट, ये रशियन इन्फ्लुएंसर का है, वी आर हैकिंग इट एंड देन यू विल नाउ यूज़ इट, यू विल रन दिस अकाउंट. तो सबसे पहले इम्पर्सोनेशन हो गया, एंड दे विल पिक ईस्टर्न यूरोपियन गर्ल्स Girls, बिकॉज yeah. उनका अकाउंट पब्लिक होता है. पब्लिक क्यों होता है? उनको इन्फ्लुएंसर बनना है. Yeah. So they don't lock it. So our guys go from here and then they become Russian influencers on Instagram. और फिर वो मैसेज करेंगे, some 45-year-old, like this guy told me that he was trying to फंसाओ some 50-year-old from Australia guy. So he was saying कि मैं मैसेज करता हूँ, एक मैसेज किया मैंने उसको, तो उतना ही काफ़ी था उसके लिए. He's there's this girl, Russian, super hot, उसको और क्या चाहिए? So it wasn't that hard to make him fall in love with you, given the setup. और फिर उसको, जैसे मैंने बताया, उसको सुबह से शाम का उसको स्क्रिप्ट मिली हुई है, इंक्लूडिंग इमोजीज, इंक्लूडिंग सेइंग दैट some from being very romantic to saying also that now you should have hot water when you wake up in the morning because it's good for your circulation. So because they're also tapping into this very tangible Loneliness. need that Huh. most people have, especially in the Western world. Yeah. They do want to have someone who's not just Taking care of them. throwing romance at you, but also makes you feel cared for. So that it's become like a very sort of brutal scam, but it works on very simple impulses, which is ki this need for intimacy, love, companionship, and then greed. जिससे KBC scam भी start होता है, जिससे बाकी सारे scam start होते हैं, because once they have developed a very close relationship with you, they are not going to ask you for money. वो कुछ बोलने वाला नहीं है कि मेरी माँ हॉस्पिटल में है या फिर मैं कस्टम्स में आके फंस गया हूँ. They are saying that we are going to have a life together. Let's just make this life as comfortable as we can. So I've been playing around a little bit with cryptocurrency. एक exchange है particular. I'm sending you the link. देखो, if you want to invest a bit of money for Americans, आराम से वो $50,000 डाल देते हैं इसमें. पहली रिटर्न आ जाती है उनको 200,000 या ऐसे कुछ आ जाता है, and they let you withdraw it. Then once you've withdrawn it, and this then goes, apparently then it's a universal thing for investment scams. एक बार आ जाती है आपको, then you want to throw in everything. So then they, in the second or third steps, then you've thrown in everything. And every time you convert your money from cash to Bitcoin, and you have invested it in this cryptocurrency exchange, हर एक उसका डॉलर गया है टू देयर बॉसेस इन कंबोडिया. और वो बॉसेस भी क्या है, वो कैम्बोडियन टाइकून्स हैं जो जिनके कनेक्शंस हैं कैम्बोडियन प्राइम मिनिस्टर से और पूरी पॉलिटिकल और बिजनेस एलीट से. एंड ऑल ऑफ दिस इज बिन मास्टरमाइंडेड बाय साइबर क्राइम कार्टेल्स इन मेनलैंड चाइना. So it's like then it becomes a sort of a very efficient transnational system in which our guys have a very small role to play, and yet without their labor this can't run. ये तो एक्चुअली कोल्ड वॉर का एक्सटेंशन हो गया. रशिया के थ्रू अमेरिकन पे अटैक कर रहे हैं, बट Yes. थ्रू इंडियंस. Through Indians. वेरी इंटरेस्टिंग. Yeah. And the Chinese cyber criminals, they वो want to Chinese bring हैं. down. So the FBI is saying it's the mass transfer of wealth from America to these networks. तो वो एक तरह से geopolitically story है. FBI पर्सनली बहुत सारे कॉल सेंटर बंद करवाती है दिल्ली में और गुड़गांव में, नोएडा में छापे मरवाती है वो. अब आई थिंक इट बिकेम वेरी एक्टिव. Yeah. तो Mass transfer of wealth है, but India की GDP में नहीं आ रही है. So that's the larger story that एक पैरेलल इकोनॉमी बन रही है एक तरह से. हाँ. और बहुत लिमिटेड है. वो पैसे वो किसी के पास भी जा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हमारे जो लोगों का स्किल है और हमारे जो लोगों का लेबर है, उससे इंडिया को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है.
तो do these people also feel, I mean, गिल्ट का कॉन्सेप्ट है? इज देयर अ कॉन्सेप्ट ऑफ गिल्ट, लाइक किसी को लूट रहे हो, जैसे किसी को आपने, किसी की फैमिली ख़त्म कर दिया आपने यूएस में, सो हैव यू एनकाउंटर्ड एनी, लाइक किसी में एक आ जाता है ना कि मैंने इसके साथ इतना बुरा किया है? आता तो है उनके अंदर भी. Over the years now, I think I've spent 10 years in this underbelly of scams. होता है, but it depends on the scam. अगर गवर्नमेंट को स्कैम कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं. अगर कंपनीज को कर रहे हैं, कॉर्पोरेशंस लाइक इंश्योरेंस कंपनीज एंड ऑल, तो उनको उतना फील नहीं होता. But one on one, if they are on a call with you or me or even someone in America, they do think of the power relations. जैसे कि जामताड़ा में मुझे किसी ने बताया था मजाक मजाक में ही कि क्योंकि वहाँ हम लोग मतलब बिहार झारखंड के डायलेक्ट में बात करते हैं, तो अगर जब वो फ़ोन करते हैं उनको तो पता ही नहीं होता कि किसको लैंड हो जाएगी, और किसी को लैंड होगी और वो उसी डायलेक्ट में बात कर रहा है तो फ़ोन रख देते हैं वो लोग ज़्यादातर. उनको भी इतना ही है कि यहाँ से फ़ोन जा रही है तो किसी दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, कोयम्बटूर के आदमी को लगे. there's a physical distance, then there's a distance of income levels, जो कि बहुत ही क्लियरली उनको दिखती है कि गांव में कोई बैठ के फ़ोन कर रहा है, कोई दिल्ली के एयर कंडीशन ऑफिस में कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, उसमें उन लोगों को थोड़ा उतना बुरा नहीं लगता है. और अगर यूएस में किसी को स्कैम कर रहे हैं तो then they will talk very clearly about global inequality, even colonialism, even the fact that हमें पीछे रखा गया है, हमसे लूट के लेके हमसे गए, लूट के लेके गए हैं, और कोहिनूर इनके पास है वो सारा. कोहिनूर इनके पास है, और हम्म. बहुत लोगों को कॉल सेंटर की दुनिया में मिस इन्फॉर्मेशन थी कि अमेरिकन ने हमको कॉलोनाइज किया हुआ था. सो दे वुड से कि 200 साल हम अमेरिका ने हम पे राज किया, और मैं अगर बोलूँ भी तो वो मेरी ये बात क्यों मानेंगे. इंडिक नैरेटिव है, इंडिक नैरेटिव, डीकोलोनाइजेशन का. अच्छा, ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं इसके अंदर. तो इसके अंदर बट एक चीज़, लाइक स्पेशली बुक में पढ़ते टाइम ही मुझे ये चीज़ स्ट्रक की कि जैसे ग्लोबली इस टाइम पे इंडियंस के खिलाफ बहुत ज़्यादा रेसिज्म है, स्पेशली ऑनलाइन वर्ल्ड में. और सारी जो मीम बनती है कि दे आर स्कैमर्स, और बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी हैं यूट्यूब पे जो रिवर्स स्कैम करते हैं. वो क्या करते हैं कि वो आपका जो स्कैमर है उसका सीसीटीवी हैक कर लेते हैं या फिर उसका वेबकैम हैक कर लेते हैं, और फिर उसको बताते हैं कि तुम यहाँ बैठे हो एंड आई कैन सी यू, व्हाट्स योर नेम, और ये सारी चीज़ें. तो इंडियन की ग्लोबल इमेज बन गई कि दे आर स्कैमर्स. बट अब हैं भी उसमें इंडियन एम्प्लॉयड, बट मास्टरमाइंड चाइनीज़ भी तो हैं. लेकिन चाइना पे कोई नहीं बोलता कि चाइनीज़ आर ऑल्सो स्कैमर्स. सो सिर्फ इंडिया की एक जो इनके मेन बंदे तो चाइनीज़ है ना जो सबको एम्प्लॉय करें, बट चाइना इज़ नेवर लुक्ड फ्रॉम दैट लेंस. व्हाई इज ये इट सो? बहुत अनफेयर है, मुझे भी लगता है, क्योंकि चाइना का कभी नाम नहीं आता इन दिस ऑनलाइन डिस्कोर्स. एंड स्कैम बेटिंग, even I used to think it's an interesting phenomenon, but I pull back from talking to these guys because it's also a very very racist filter. तो वो मुझसे भी वो इस हिसाब से बात करते थे कि I am representing these people, and yes, unfortunately it's become like a stepping stone for anyone wanting to be full on racist against Indians. They'll start here. They'll start with the whole scam baiting wala lingo कि आप ये लोग स्कैम करते हैं. एंड इट्स, आई रिमेंबर, and it's not just scam betas, like that idea, the wider idea that India से ज़्यादातर इस तरह के scams शुरू हो रहे हैं, it's become so mainstream almost. How can I put it? It's almost now become an official statement. I was in the UK recently, and I remember taking an Uber with someone in London. There were two of us. Because I called for the Uber. When I was in the car, my friend said, I'll pay you. Let me know how much it costs. So I'll pay my share through her sort of digital wallet, her banking app. So I gave her my information, and then she added me immediately on her mobile, and then she was trying to transfer the money back to me. जो 10 pound 15 pound का था पूरा किस्सा. The bank, knowing that my name and all my information hints at an Indian connection, it alerts her. It says, are you sure that you want to transfer money to this bank account? It could be suspicious. Okay. So she asks me, Snigdha, why is my bank telling me that you could be a scammer? And मैं उसको पूरा कहानी नहीं सुनाना चाहती अपनी किताब की. So I said, I'll
I'll read tell you. my book. Yeah, read. Book भी बिक सकती है extra से. What? Like, I totally lost that opportunity and missed that opportunity. And I said, ऐसा पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं. But that's, that's that's how far that idea has traveled. So yeah, it's quite tragic. नहीं, ऑनलाइन जैसे मैं कम्युनिटीज़ को वो करता हूँ, मैंने बुक में भी एक स्कैम चैप्टर लिखा है कि इंडिया को वो अब स्कैम्स की तरह ही देखते हैं. तो यूट्यूबर भी उसके अंदर आते हैं, तो जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस स्कैम्स, ताकि Yeah. वो क्लिक बेट और उसके थ्रू Clickbait हो हो जाए. गया है, तो हाँ. कई जगहों पे तो मैंने बुक में लिखा है कई जगहों पे तो स्कैम हुआ भी नहीं है, एंड दे आर सेइंग कि ओ वी गॉट स्कैम्ड. उस पर लिखा वी गॉट स्कैम. उसमें स्कैम क्या था, एक बंदा आया जो एयरपोर्ट से उतरा, उसको पहाड़गंज जाना था, एंड देन उसको बोला 200-300 रुपये एयरपोर्ट पे. हो कहते नो 50 रुपीज़. अभी एयरपोर्ट से पहाड़गंज 50 रुपीज़ में कोई कैसे जाए. वो कहते हैं दीज आर स्कैमर्स. तो वो सारी भी उसके अंदर, जैसे मैं कई टाइम से बोल रहा था, या फिर रिक्शे वाले पे कोई जाते हैं, फिर रिक्शा वाला उनसे मतलब 30 रुपये बोल देता है, वो भी हाथ वाला रिक्शा 50 रुपये बोलते हैं, नो 30 रुपीज़. फिर वो कहते हैं नहीं, फिर कहते हैं इंडियंस आर स्कैमर्स, उसमें वो बोलते हैं. Yeah. तो मैंने कहा ये तो स्कैम्स के थ्रू एक तरह से वर्किंग क्लास पे आप इतना टारगेट कर रहे हो, उनकी लाइवलीहुड पे. तो वो भी एक एस्पेक्ट दिखा. मतलब ऑब्वियसली देयर आर स्कैम्स ऑल अराउंड, बट एक But ये this, जो क्लासिज्म yeah. वाला जो है ना, वर्किंग क्लास को टारगेट, दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद. No, in fact, I think that section in your book is frightening and eye-opening कि अब लोग ये भी नहीं कि यहाँ पे आके उनको आइडिया हो रहा है कि थोड़ा बहुत ये कंटेंट बना लेते हैं. They are coming Coming to through that. India and to Pakistan to make these videos, and they are as also you call playing it, that scam tourism. scam tourism, scam Yeah. economy में, जो डिजिटल इकोनॉमी है, तो उसमें scam keyword works very well for Indian content. So Yeah. now, yeah, And engagement farming, which engagement farming now you say is the one of the biggest like you scams. also, your chapter is also like scamming is new farming. Scamming is a new हाँ, farming. फिर वो बाद में BPO बना, जो वो replaced farming. Now I think podcaster have replaced. Podcasting is the new scamming. farming. Yes. So this is also for that. तो ये सारी चीज़ें थी. एक लास्ट के 2-3 क्वेश्चन अगर हम ले लें, तो जैसे इसमें आई थिंक इट विल शॉक मैनी पीपल कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड ऐप है, डेटिंग ऐप, लोगों को लगा है हिंज, टिंडर, बम्बल होगा या ओके क्यूपिड होगा अगर कोई पुराना होगा तो. बट यहाँ पे तो कोई और ही ऐप है, लामोर, जो कि शायद चाइनीज़ ऐप है. तो ये इतना डाउनलोडेड ऐप क्यों है, और किसी को, मतलब ज़्यादातर लोगों को पता क्यों नहीं, एटलीस्ट उनको जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई मेंबर भी हो इसका. आई कांट बी सो श्योर. बट हाँ, ये क्या ऐप है ये? बिल्कुल हो Lamor. सकता है. I was talking to another audience about this story, and one of them said, one of the people from the audience got up and said कि I have also been on these video calls. ये सारी जो, yeah, you're right कि Tinder और Hinge और Bumble से बहुत ज़्यादा downloads उसके होते हैं. In the year that I was looking at these fake dating apps, they had more downloads than both Tinder and Bumble, and they are run by people who are sitting in China. These apps were created in China, and the whole premise is that the Chinese understand the Indian dating market much better than Americans or anyone in the West. And they, this guy who runs this dating app told me very clearly, the Indian dating market only caters to the elite. So what happens to the rest of the, the 95% of people in the pool? He said that we are here to launch them into a new era of dating. और वो new era क्या है? There are more men than there are women. Men are desperate to chat and talk to women. So the whole idea is that the men should then pay to talk to women. So इस app में if you join as a guy, it's like works like a Tinder or Bumble kind of system where you shown a cascade of photos, up left karo, right karo, swipe, and then you can have a conversation with someone. If you join as a woman, which I did, then you are contacted by an agency somewhere in Gurgaon or another place, and they want you to start working for the app as a quote-unquote earning user. What's an earning user? It means that for each second that I spend talking to a guy on the app, my time is monetizable, and it'll be sort of monetized in from the minutes to dollars, and the Chinese will take a cut, and then it'll come back in rupees to my actual bank account. The guys don't know this, so they are just thinking कि
लड़की ने फोटो भेजा है पर वो खोल नहीं सकते unless they have paid a they have ब्लर bought होता है diamonds. It's a virtual currency on the app. Yeah. Once they buy diamonds, then they can get on a call with me. पर मुझे ऐप मैंने क्या बोल रखा है कि आपको कॉल को इतना लंबा ड्रैग करना है कि जहाँ तक बात रोमांस तक शुरू होगा जब तक उनके VIP पैकेज कितने अपग्रेड हो चुके होंगे. So they are saying to me, like I have a recruiter, her name is Ruhi, she's sitting in a corporate tower in Gurgaon, and she is taking me through the entire sort of rules of the game, and she's saying कि आपको कॉल को ड्रैग करना है. So you just keep saying कि आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, आपने क्या खाया है, and then at some point, then by the time that they say कि you have to come on video call, I want to see your face, then you just tell them to Buy upgrade. diamonds. Then even when they have upgraded, even when I'm on a video call, then I have an option to blur my image ताकि वो मेरा पूरा चेहरा देख ही नहीं सकते हैं. फिर वो blur हटाने के लिए भी they have to pay money. So I asked these people who were working for the app but sitting in India, marketing करते हैं उसके लिए, उनका call center चलाते हैं, why are you know that these dating apps are very obviously fake, and it's creating a whole class of women for whom this is the only sort of paradigm for dating, that if it's a woman you're talking to a guy, then you should be paid for it, and it's something that the guys don't know, so it's like a very sort of deceptive territory, and they just said this is what the market is. Girls are in demand, the guys have to pay to talk. Chinese are super smart in that sense, like that Super smart. non-elite market. Like TikTok was also based on that whole philosophy. Yeah, कि this you- came out हाँ, of the TikTok TikTok market, वाला तो because फिर TikTok had live streamers, and the girls used to get gifts from the guys on Yes. TikTok. Gifts that then they could monetize with TikTok. तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है उस तरीके से. इसके अंदर एक वो जैसे वी वर टॉकिंग की उस तरह पहले न्यूज़पेपर में भी एड्स आते थे इस तरह की कि चटपटी बातें करें, और उसका नंबर कुछ ऐसे होता था ना 08 वाला, समथिंग लाइक दैट, 1800601601 इस तरह का. तो आई वंस डायल्ड know. हाँ द नंबर. तो उसमें कुछ उन्होंने वो भी ऐसी कुछ फालतू की बातें कर करके आपका This is an old model. वेरी ओल्ड मॉडल. आज से Amazing. 20 साल पहले न्यूज़पेपर में आता था, लाइक I जो used to उस see टाइम पे them, होंगे but तो I वो never. हाउस में था कि चटपटी बातें करें, और नीचे से लिखा होता था. तो आप उनको कॉल करो तो वो कुछ रैंडम बातें करते, और क्या हाल है, किधर क्या कर रहा है. इतने में आपका टॉक टाइम बहुत महंगा था उस टाइम पे, तो आपके 400-500 रुपये उसी टाइम पे ख़त्म हो जाते थे. तो इट्स एन ओल्ड मॉडल जिसको उन्होंने Digitize एक कर दिया है. डिजिटाइज करके जो ह्यूमन नीड और उसको मिक्स करके उन्होंने एक बहुत ही गजब स्कैम. बट ये तो स्कैम है नहीं टेक्निकली, बिकॉज दे आर ऑल्सो गिविंग सम काइंड ऑफ अ प्रॉमिस टू यू, एंड you yourself are going there. Yeah. In As fact, with the KBC scam, वो भी तो वही कह रहे हैं ना कि हमने तो बस इतना बोला कि लॉटरी लगी है आपकी, वो तो आदमी कह रहा है ना फिर कि मुझे चाहिए. इनफैक्ट मैंने कई जैसे डेटिंग जो वो होते हैं उनके रिव्यू में भी आजकल लिखते हैं कई, वो फेक है, 0 स्टार 1 स्टार, फेक है, इसमें कोई असली लड़की नहीं है. हाँ, पर लेकिन फिर वो ये एप्स जो like with the Jamtara system, then they also started to buy reviews. So they would give you, obviously there are thousands of people who only whose income is to comes through fake reviews. तो उसका वो 15 रुपए देते थे एक fake review का. These the guys from the fake dating apps. अच्छा, तो अब रिव्यू भी उन्होंने खरीद लिया, तो now there is no point. Yeah, because there were guys who would say that L'Amour is fake. उसमें तो bot है जो आपको जवाब देते हैं सारा. फिर लड़कियाँ आती हैं like real women, but they are not real in that they're not real users. They are earning users. But then someone would post another review to say कि क्या बकवास है मेरा, तो I've gone on date with someone using L'Amour. It's all good. जैसे वो ऑफलाइन में भी लिखते हैं कॉकटेल फ्री फॉर विमेन या ड्रिंक्स आर टोटली फ्री. वो फिर को खुद कई क्लब्स में ऐसे करते हैं ना, दे ब्रिंग विमेन, एंड फिर उससे मेल कस्टमर को बहुत सारे आते हैं, फिर पता चलता है वो उन्हीं के थे, एंड दे आर नॉट, दे डोंट मिंगल जो उस एक्सपेक्टेशन से आते हैं. तो ये चारों तरफ मतलब जो भी ह्यूमन नीड और ग्रीड और उसका लाइक वी वर टॉकिंग, उसी का एक मोनेटाइजेशन मॉडल है. बड़ा ही इंटरेस्टिंग. बिल्कुल बिल्कुल. I think the story is not that there are only sort of
Like without digitization, this world could not have won't, हाँ, existed. It could it have. would It's just a tool. अभी डिजिटाइजेशन से जैसे एक नेक्स्ट स्टेप जो है, जो कि मेरा फाइनल सवाल भी होगा कि फॉर एग्जांपल मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी कि एक मैं अकाउंट चेक कर रहा था किसी, मतलब रील पे आया था, तो किसी लड़की का अकाउंट था, और ऑब्वियसली वो मेल गेज के हिसाब से उन्होंने उस तरह का अकाउंट बनाया था। उसके काफ़ी सारे फॉलोवर थे, 500K 600K, और वो कोई भी फ़ोटो डालती थी तो वीडियो रील डालती थी तो उस पर कमेंट आ रहे हैं, लव यू लव यू लव यू डियर, मैरी मी मैरी मी मैरी मी, लव यू लव यू लव यू, ये चल रहा होता है उसमें, डियर सो हॉट सेक्सी सेक्सी सेक्सी। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये इतना क्यों पागल हो रहा है? फिर मैंने उसकी प्रोफाइल देखी ढंग से, तो मैंने थोड़ा सा, मैंने कहा ना, इट लुक्स सम लाइक अनयूजुअली, जो होता है ना एक्सट्रीम ब्यूटिफिकेशन, मतलब कि ये तो कुछ अनयूजुअल ब्यूटिफिकेशन है। तो फिर मैंने और थोड़ा सा देखा, देना आई रियलाइज ओके दीज आर AI अकाउंट्स। सो बेसिकली ऐसे AI अकाउंट्स बहुत सारे आ गए जो ऑलमोस्ट ऐसे दिखते हैं The कि कोई user लड़की है। itself is AI हाँ, made. वो AI का है, So वो not just कोई है followers. ही नहीं, नहीं फॉलोवर तो असली हैं, वो तो बेचारे शादी करना चाहते हैं Wow. लेकिन जो रील है वो लड़की एग्जिस्ट नहीं करती Mind इस दुनिया blowing. में। Because पहले दूसरा होता था कि हाँ your user is real, but they have bought fake followers, which you write हाँ, about. लेकिन अभी उल्टा है, अभी User यूजर्स, ही fake है, but followers real हैं और हाँ, शादी अब करना चाहते हैं. फॉलोअर रियल हैं, शादी करना चाहते हैं, प्यार में पड़ना चाहते हैं और अपनी लोनलीनेस हटाना चाहते हैं, बट सामने कोई है ही नहीं, इट्स लाइक घोस्ट, सो दे आर इन लव विद अ घोस्ट, व्हिच इज Yeah. वेरी स्ट्रेंज। Yeah. तो ये अब स्कैमिंग आई थिंक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई, जिसमें कि स्कैमर ही नहीं है तो पकड़ोगे किसको? इसमें लिटरली डिजायर्स हैं एंड मनी है, हम्म। बट देयर इज नो स्कैमर। तो आप पकड़ोगे किसको? आप जेल नहीं डाल सकते उस लड़की को अगर वो आपसे पैसे ले, मतलब ऑब्वियसली आप उसके तो यूजर को आप जाके ट्रेस कर ढूंढोगे सकते। कि किसने बनाया है. हाँ, फिर पता चला वो मिलेगा ही नहीं मशीन आपको. में घुसना पड़ेगा आप कंप्यूटर में घुस गए, वहां ढूंढ रहे हो उनकी तार वार में कहीं वो लड़की हो, तो ये पे बहुत AI है ना, तार-वार कुछ है नहीं, डेटा सेंटर. डेटा सेंटर में जाना पड़ेगा, डेटा सेंटर पे रेड करेगी. रेड करेंगी। इनफैक्ट एक नया अभी आया है कि बहुत सारे बॉट्स ने जो AI के, उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बना लिया, यू नो दैट सोशल नेटवर्क बना लिया, वहां से बॉट्स आते हैं। Yeah. सो एक I नया wouldn't know these things without you. तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फ्यूचर जो हम What is it called? it's called malt or something. I'll send like link it here. It's a very big Link thing. it here. हाँ, मतलब यहाँ पे I'll put the photo. बहुत ही मेजर थिंग है वहाँ पे। जितने भी जो AI बॉट्स थे उन्होंने कर लिया, वो ह्यूमंस का मजाक उड़ाते हैं वहाँ पे। No, stop. नहीं, सीरियसली इट्स अ वेरी बिग न्यूज, सब में है अभी, इट्स अ वायरल न्यूज। वो ह्यूमंस का मजाक उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया पे और हम देख रहे हैं उनको ऐसे तो अभी जो नेक्स्ट स्टेज है वो तो स्कैम्स की और इनकी, आई थिंक इट विल बी अ वेरी, मतलब इसमें तो हो सकता है कि हमें जो एटलीस्ट जो हमारी ह्यूमन फोर्स लगी हुई है स्कैम में, उनकी भी जरूरत ना हो। सो दैट वुड बी अ जॉब रिडक्शन इन दैट सेंस मे बी, बट AI इज टू बी वेरी, टू टॉक स्पेसिफिकली दैट नाउ नेक्स्ट स्टेज माइट बी दिस AI ड्रिवन स्कैम्स। और AI के साथ ऐसा है कि आप उसका रिप्रोडक्शन नेक्स्ट लेवल पे कर सकती हो, जो उसका उसको आप Agents जो प्रोड्यूस कहते हैं करने ना. का, हाँ, तो वो आप नेक्स्ट लेवल पे आप कर सकते हो। तो आप जो what kind of future you see in this particular industry, लघु उद्योग, in that sense? लघु तो नहीं है, अभी बहुत बड़ा हो गया। I don't think they need to really use AI at that level yet, क्योंकि labor इतनी cheap है. I think we will get to a point as with Western society जहाँ पे कि अब labor वाला जो threshold होता है, when it will be cheaper for them to have AI agents. पर अभी के लिए तो बहुत सारे लोग हैं. And like I said, it's not just India, right? It's like the whole league of low income nations. पर AI का यूज़ वो लोग ऐसे करते हैं जैसे कि अब हम कर रहे हैं, to just make themselves more efficient. जैसे कि अब ये जो पिग बुचरिंग वाला स्कैम सेंटर होते थे, जहाँ पे कि कोई तुमको से pretend कर रहा है कि वो रशियन इन्फ्लुएंसर है. So the guy in Australia sometimes would demand कि मुझे बात करनी है तुमसे वीडियो पे. So these call centers in Southeast Asia used to hire white women, some white women, like not a scam compound full of them, कि किसी का फ़ोन आ गया, किसी को वीडियो पे कॉल करनी है, so they would do that. But now their jobs are going. So it's not like कि हमारे लोगों की जॉब जा रही है, पर उन लड़कियों की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो AI से किसी को दिखा सकते हैं बना के. Again, like with voice cloning, they can, they're doing that. With
The scripts used to be written by professional writers. Now they don't need that. So I still feel like there's a whole there is going to be like a whole different in the next 4 or 5 years they'll keep sort of making more and more of these steps automated. But as far as that human because you need a human connection to perpetrate a scam, वो AI अभी उस लेवल पे आ नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आपको फोन पे 2 मिनट भी किसी से बात करनी है, you'll be surprised. It's tough to, because I try to be a scammer, it's tough to make a connection, and it is so hard for you to make such a connection with in such a short span of time कि आदमी आपको पैसे ही दे दे, सीधे OTP दे दे. तो वो थोड़ा मुश्किल है अभी AI के लिए, but आगे का That's true. किसने देखा That's है. true. Thank you so much, Snigdha, for speaking about all different kinds of scams, and especially about the Indian society. I think it's not just a book about scam, but what exactly is happening in the Indian society in that whole globalization thing. So it's a social psychological study in that sense. It's not just about the scam, and I think you should definitely read this book. One of the best book of the recent times, Scamlands. Please buy it. It is available at the bookstores, on Amazon, and many other mediums, so please do buy it. So yeah, thank you so much, Snigdha, for Thank coming to you. this Thank you. podcast. It's always a pleasure. Thank you. So this was today's episode. If you like it, then please make sure to become a member so that you can enjoy many such episodes. There are many member only content that we have, so please do become a member. Thank you so much for watching this episode.